کیوں نہ عقیدت تجھ سے کرے غم، جب کہ ہم کو تجھ سے ملے، جب کہ ہم کو تجھ سے ملے، اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے ہاں طیب مفتی طیب صاحب، آپ کا جو بھیجا ہوا تھا دیکھا میں، اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اعتراض آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا چیز ہے اس میں؟ تو کچھ اعتراض نہیں ہے۔ آپ کی بے ایمانی کا اور آپ کی واہی تباہی کا، بربادی کا ثبوت خود تمہارے بابا نے، یار خان نعیمی نے پیش کیا ہے۔ ہاں پڑھیے، آپ کا لنترانی بکواس کرنے سے نہیں نہ ہوگا، آپ پڑھیے عبارت پڑھیے کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ خلاصہ ماحصل میں پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے صفحہ نمبر 96 پر لکھ رہے ہیں، امیر معاویہ ایک نظر کتاب ہے یار خان نعیمی کی۔ جی یہ لکھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والے کون ملیں گے؟ یا تو روافظ، یا پھر وہ لوگ جو روافظ کی صحبت میں رہ کر کے اپنے عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں۔ اچھا عبارت پڑھیں آپ کے سامنے؟ ہاں چلو عبارت بھی پڑھنے کے کیا بات ہے، چلیے پڑھیے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ماحصل خلاصے سے جو ہے کام آپ کے نہیں، آپ کے تعویلات اور آپ کے جو مفہوم مقصد لیتے ہیں وہ غلط لے رہے ہیں۔ اب سنیں میری بات، اب پڑھ رہا ہوں نا میں۔ یہ اس کتاب کا، یعنی کتاب کا نام ہے امیر معاویہ پر ایک نظر، اور اس کتاب کا یہ صفحہ نمبر 96 ہے جی۔ اس میں ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والے کون ملیں گے؟ یا رافضی یا سنی جو روافظ کی صحبت میں رہ کر یا ان کی کتب دیکھ کر اپنے ایمان کی دولت برباد کر چکے۔ ہاں سمجھ میں آ گیا؟ ہاں پڑھیں آگے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ سنی ہم لوگ ہیں، ہاں اپنے متعلق آپ نے دعویٰ کیا تھا۔ جی جی۔ اور یہاں سنیوں کو کیا کہا گیا ہے؟ سنیوں کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے روافظ کی صحبت میں رہ کر اور روافظ کی کتب دیکھ کر اپنی ایمان کی دولت برباد کر لی۔ تو تمہیں تو اس کتاب میں یار خان نعیمی نے روافظ کا صحبت یافتہ بتا دیا اور روافظ کی صحبت پا کر ایمان کی دولت کو برباد کرنے والا بتا دیا۔ جی جی۔ تو پھر تم جو ہے اپنے مسلمان ہونے کے دعوے دار کس طرح سے ہو بھائی؟ یعنی بریلوی مسلک کو اہل سنت و جماعت آپ نہیں سمجھتے، مطلب کیا ہے؟ نہیں، اہل سنت و جماعت نہیں سمجھتے؟ نہیں۔ اچھا یہ کتاب میں دیکھیے، سنیے، کون علی اصغر، یہی مسئلہ ہے، وہ ضابطہ مفتی صاحب بول رہے ہیں، اب بیچ میں آپ ٹپک پڑے۔ دیکھیے امیر معاویہ پر ایک نظر، سن لیجئے ان کا کلام میں سن لیا، جواب دیا میں۔ امیر معاویہ پر ایک نظر، آپ بکے نہیں۔ ہم کیا سمجھتے وہ مسئلہ نہیں ہے، تو مسئلہ یہ تھوڑی ہے، مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ تو وہ تو ظاہر کر دیے نا، یہ تو ظاہر کر دیے کہ ہم بریلیوں کو سنی جماعت والے نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں وہ مسئلہ بھی نہیں ہے، ابھی مسئلہ تمہارے گھر کا ہے۔ ہمارے گھر کے دیکھ رہے ہیں نا، اس میں کیا ملیں گے؟ رافضی یا سنی؟ کون سنی کی بات کر رہے ہیں؟ جو روافظ کی صحبت میں رہ کر ان کی کتب دیکھ کر اپنی ایمان کی دولت کو برباد کر چکے، وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ سنی لوگ اپنی ایمان کی برباد کر لیے، تو اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پھنسنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے جی، اس میں بالکل صاف طور پر لکھے ہوئے ہیں علی اصغر صاحب، اور آپ دونوں لائن پہ رہے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کو سنی کہنے سے انکار کر رہا ہے قاری مفتی طیب صاحب نے۔ تو اپنا مسئلہ بھی نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے گھر سے آپ کیا ثابت ہیں وہ مسئلہ ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے جو روافظ کی صحبت میں رہ کر یا ان کی کتب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والا کون ملیں گے؟ یہ رافضی یا سنی؟ اب کون سنی کی بات کر رہے ہیں؟ جو روافظ کی صحبت میں رہ کر یا ان کی کتب دیکھ کر اپنی ایمان کی دولت برباد کر چکے۔
समझे। वो लोग क्या करते हैं, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहते हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, सहाबी को बुरा भला कहने वाला, सहाबी को बुरा भला जो कहे वो सुन्नत जमात में रहेगा, काफिर होगा या मुसलमान रहेगा? फिर भी सुन्नी है तुम्हारे यहाँ? नहीं, वो तो वो ईमान बर्बाद कर चुके, बर्बाद खत्म, वो खत्म हो गए। तब आगे दुआया जुमला कहे हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती अहमद यार खान साहब, आगे दुआया जुमला कहे हैं, रब तबारक व तआला हर मुसलमान का ईमान इस जमाने की हवाओं से महफूज रखे। बिल्कुल सही कहा, सही है ना? आप भी सही कह रहे हो, लेकिन आपके घर में जब फतावा रशीदिया में पढ़ता हूँ, जो शख्स सहाबे कराम की किसी की तकफीर करे वो मलून है, ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है, वह अपने इस कबीरा गुनाह के सबब सुन्नत जमात से खारिज ना होगा। यहाँ तो आपके यहाँ मेरी बात सुनोगे जी, किताब में मौजूद अल्फाज उनके बिहाफ पर अब आपसे गुफ्तगू जी 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 जी, सुनना मेरी बात। आप क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? अरे भाई मुझे ये बताइए अख्तर निजामी साहब, क्या किसी सहाबी की वफात पर खुशी का इजहार करना या खुशी के इजहार में कोई रस्म अडोप्ट करना, ये बताओ गुस्ताखी है कि नहीं है? अभी मौजू कहाँ ले जा रहे हो? अब क्या कर रहे करके मैं ये कह रहा हूँ, मेरा दावा ये है कि जितने भी बरेलवी हैं वो सब के सब रवाफिज के सोहबत याफ्ता हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आपने दावा किया, अब कारी तैयब साहब से बात होगी, इन्होंने बड़ी दावा कर दिया है कि हम बरेलवी मसलक वालों को सुनो 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 सुन लो अली असगर साहब, आप बुखलाए नहीं, मेरी बात सुने। मुफ्ती तैयब देवबंदी ने ये दावा किया कि बरेलवी मसलक वाले अहले सुन्नत व जमात वाले नहीं हैं बल्कि रवाफिज हैं, कह करके माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और यही आपके अकाबिरीन भी यही कहे हैं और फतवा भी दिए हैं। देवबंदियों के दारुल इफ्ता मज़ाहिरुल उलूम के मुफ्तियाने बेन नसीब लिखता है, अगर कोई शख्स, सुन लो मेरी आपकी बात कैसे मैं संजीदा होकर सुनता हूँ, मैं संजीदा होकर के आपकी बात सुनता हूँ और आप मेरी बात को दोनों आदमी बुखला रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब दे रहा हूँ। अगर कोई शख्स सुनिए, सुन लो, सुनोगे या नहीं, सुनोगे या नहीं? सहाबी रसूल की वफात पर खुशी मनाना, सहाबी रसूल के वफात की खुशी मनाना, मौजू से हट रहे हैं आप। सुनो, उसमें भी इंशाल्लाह खटिया कड़िया बिस्तर गोल करूंगा। पहले तुमने के बरेलवी मसलक को अहले सुन्नत व जमात नहीं मानते हो, रवाफिज का दावा कर दिए हो। एक हक जो है सादिक और सच्चा साबित। सुन लो बुखलाए नहीं, सुनो मुफ्ती तैयब साहब, मुफ्ती देवबंद तैयब साहब सुन ले। बरेलवियों ने ये ले रखी है। अरे सुनो यार, है कि नहीं है? जब हमारा कुत्ता काट दिया है क्या पता नहीं, तो मेरी बात सुनो। तुमने दावा कर दिया तो मैं पढ़ रहा हूँ, यही आपके मुताबिक आपके अकाबिरीन भी लिखे हैं। अगर कोई शख्स बरेलवी फिरका को भाग रहे हो तुम, अरे पहले अपनी किताब पर तो गुफ्तगू कर लो। सुनो, वही बात दे रहा हूँ मैं, तुम्हारे सीने में चढ़ के जवाब देता हूँ ना। मेरी आदत क्या है, देवबंद के और रायवंड के सीने में चढ़ के जवाब देता हूँ, वो अख्तर निजामी है। सुनो, अगर कोई शख्स, वही मैं तुम्हारे घर से ही जवाब दे रहा हूँ। सुनो यार, कहना क्या चाह रहा है? अजीब तमाशा है तुम्हारे, सुनते भी नहीं हो। तमाशा तो तुम्हारा बनेगा अभी थोड़ी देर में। अरे तो थोड़ी देर में वो देखेगा, अभी तो इब्तिदा है, इश्क है, आगे देख क्या होता है। अगर कोई शख्स बरेलवी फिरका को अहले सुन्नत व जमात शुमार करता है तो ये उसकी सरीह गुमराही है कि ये फतवा दिया है। ये देवबंदी का मुसद्दका किताब मोहम्मद आकिल देवबंदी और सलमान देवबंदी, मकसूद अली देवबंदी, अब्दुल रहमान देवबंदी, देखिए मुजल्लद सफदर शुमारा नंबर 31 सफा नंबर 47। देवबंदी मौलवी मंजूर अहमद साहब लिखते हैं, इनको हम अहले सुन्नत व जमात अहले सुन्नत कहना भी गुनाह है। मुजल्ला सफदर शुमारा नंबर 40 सफा नंबर 27। और देवबंदी मौलवी यूसुफ लोधियानी के हवाले से एक देवबंदी लिखता है, बल्कि अहले सुन्नत करार देने को सरीह गुमराही करार दिया है।
कौन? ये सफदर और आपके देवबंद वाले, आपके अकाबिर वाले। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं देवबंदियों के काजी मजहर साहब लिखते हैं देवबंदी और बरेलवी की निस्बतें देवबंद और बरेलवी के दीनी मदारिस के बिना पर हैं, जो मजहब अहले सुन्नत व जमात के दो मुख्तलिफ मकतबे फिक्र हैं। इत्तेहाद फितना, सफा नंबर 11-12 मकतबे उस्माना से छपा है। इत्तेहाद फितना जरा भेज दें मेरे पर्सनल में, इंशाअल्लाह अजीज भेज रहा हूं मैं, हवाला मेरी जिम्मेदारी है। फिर इसने अपने अकाबिरीन में से कुछ नाम गिनवाए जी। कुछ किताब मैंने आपके पर्सनल में भेजी है जी, मैं जो बोलूंगा वो पहले भेज दूंगा आपको, ठीक है? और आप भी मुझे पर्सनल भेजें। जी 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 जी, जरूर दूंगा जरूर दूंगा। देवबंदियों के मैंने भेज दिया, आप दें। मैं अभी निकालूंगा तब नहीं दूंगा जी। अभी मैं जरूर बात होने के बाद आपको मैं जितने हवाला दूंगा, अगर मुझसे मुतालबा कर सकते हैं मैं दूंगा। पढ़ नहीं रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बिल्कुल मेरे हाथ में है। तुम तुम्हारी किताब अभी मैं फोन करके बात कर रहा हूँ आपसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर झूठ बोलूंगा तो आप रिकॉर्ड कीजिए और कहिए कि मुतालबा कीजिए। हवाला पहुंच गया तुम्हारे पास? मेरे पास आया भी नहीं है, मैं ऑनलाइन देखो डबल निशान बता रहा है, डबल निशान, झूठ मत बोल, डबल निशान बता रहा है। देखो पर्सनल व्हाट्सएप खोलो, मैंने भेज दिया, डबल निशान बता रहा है। तुम्हारे पर्सनल किताब स्कैन पहुंच चुकी है। अच्छा, देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपके, इसका जवाब दे रहा हूँ, अभी तक जवाब दे देता मैं। पहले हवाला भेजो। हवाला दे रहा हूँ मैं, निकाल करके दे रहूंगा ना। जब तुमको मुफ्ती तैयब कासिम साहब ने कहा था, मैं फोटो, मैं स्कैन करके आपको फोटो निकाल के भेज दे रहा हूँ। अरे मेरी बात सुन यार, तुमने जब पहले फोन किया था मुफ्ती साहब ने, तुमने कहा कि हवाला भेजो। जैसे हवाला भेजा, तुमने कहा कि मैं फोन करता हूँ 10 मिनट के बाद। तुम्हारी आदत रही है जब भी तुमको कोई मौजूद नहीं, मैं क्लास में रहता हूँ ना, मैं फ्री वक्त में नहीं रहता हूँ, मैं फ्री वक्त में नहीं रहता हूँ। आपसे बहुत दिनों की बात हो रही है अली असगर साहब। सुनो, जब तुम्हारे पर्सनल पे हवाला भेज दिया है पहले से, तुम फोन करके भाग गए, अब तुम्हारे पास भेज रहा हूँ तुमसे। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्लास में था, भाग गया कर। क्या तुम लोग कई अजीब तमाशा बना के रखते हो यार। किताब दो, किताब दे रहा हूँ, सुन लो पहले। नहीं सुनिए, इसका जवाब सुन लो पहले। मुझे सुनना नहीं, उस बात क्या सुनोगे नहीं? किताब पहले या अल्लाह, मैं फौरन भेज दे रहा हूँ बात होने के बाद। हवाला भेजो, मैं हवाला भेज दे रहा हूँ। देवबंदियों की 116 उलमा के मुसद्दिका किताब है मेरे हाथ में। पहले भेज, सुनो, पहले सुन लो। नहीं सुनो, नहीं क्या तूने पहले हवाला मांग लिया? पहले हाँ, पहले तू हवाला मांग लिया। अल्लाह, नहीं मैं बीच में नहीं मांगा, मैं आपसे मुतालबा नहीं किया। अभी बात कर रहे हो, तूने पहले मांगा, पहले बात कर रहे हो तो मैं भेज दूंगा कह रहा हूँ ना। हवाला भेज, भेजूंगा कह रहा हूँ मैं, तो तुम हवाला भेज, हवाला भेज। मुफ्ती साहब ये अपनी किताब से पढ़ता है, ये मेरी किताब से भेजा नहीं, तुम्हारी इबारत पढ़ रहा हूँ। मिनो अन, सुन लो। अहले देवबंद या जमाते रिजवी ये सब अहले सुन्नत व जमात अहनाफ से हैं। कार आसमानी बरफ़िक़े रज़ा खानी, सफ़ा नंबर 119, बरखी परेश बिजनौर, बारे अव्वल। समझे? तुम झूठ कहते रहते हो। मैं फौरन हवाला भेज दे रहा हूं। और देवबंदी मौलवी इलियास घुम्मन के पीर अब्दुल हफीज मक्की साहब अपने एक मकतूब में लिखते हैं, इस सियाहकार के इल्म में नहीं के अकाबिरीन में से किसी ने इस पूरे गिरोह ताइफा बरेलविया के अहले सुन्नत व जमात से खारिज होना फरमाया हो। अलबत्ता हजरात अकाबिरीन के अमल से तो साफ नजर आता है कि उनको अहले सुन्नत व जमात में से ही समझते हैं। फिर उसने अपने अकाबिरीन में से कुछ नाम भी गिनवाए हैं। लिखते हैं, कारी तैयब रफी उस्मानी यूसुफ लोधानी, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत, सफ़ा नंबर 594 में लिखा है। तो मालूम हुआ 116 देवबंदी और दिगर अकाबिरीन कारी तैयब यूसुफ लोधानी, कारी मजहर हुसैन के फतवे से देवबंदी अकाबिरीन क्या हुए? सुनिए, सरी गुमराह हुए। उनकी गुमराही की तावील नहीं हो सकती। अल्लाह की कसम मैं खा के कह रहा हूँ कि जालत मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं पढ़, आपके घर की स्कैन को मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं तुम्हारे हर मौजू में तुम्हारे जब फोन करोगे मैं फुर्सत में रहूंगा तो बात कर लेना। तो सरी गुमराह देवबंदी सरी गुमराह साबित हुए।
और कारी तैयब तो ये मुफ्ती तैयब तो क्या हो गया, ये काफिर हो गया खुद के फतवे से, क्योंकि देवबंदियों के नजदीक सरीह में तावील नहीं होती है, समझे। जालिम भी वो है, बताएं सरीह गुमराह गुनाहगार जालिम, उनको अपना अकाबिरीन मानकर सारे देवबंदी मुसलमान क्यों रहेंगे, वो सब काफिर हुए ना। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं आली असगर को मालूम है कि मैं जबड़े उखाड़ देता हूँ, देवबंद के बुनियाद को खोखला कर देता हूँ, यही चिल्लाएगा ना। जब बात हो रही दरमियान में मैं फोन को डिस्टर्ब करके हवाला भेजूं, अभी सुनो, मैं अपने आंखों से देखूंगा। जी जी बिल्कुल, मैं अभी मैं फोन को सुन लो, अवाम को नहीं, तुम लोग अवाम को बेवकूफ बनाते हो यार। तुम्हारे घर में मैं साबित कर दिया क्या बरेलवी अहले सुन्नत व जमात है। देवबंदी के काजी अजहर साहब भी लिखते हैं, सुन, और इलियास घुमन भी इकरार किया है, इलियास घुमन के पीर भी इकरार किया है। जाल हक पढ़ के गुमराह कर, बेवकूफ गधे तुम हो यार। मैं इतने हवाला लगा दूंगा कि हवालात में बंद हो जाओगे कसम से। संजय हवाला मैं भेज दूं फोन काट करके, मैं फोन काट के हवाला भेजूं? नहीं, फोन मत काटो, अभी मैं फोन काट के भेजूं? तुम मेरी आवाज को नहीं सुन रहे थे, बीच में दोनों कुत्ते की तरह भौंकने लगे यार तुम लोग। अब मैं बोलूं, उसके साथ सुनो, अब मुझे बोलने दो। उन्होंने कहा कि तैयब साहब ने क्या कहा कि बरेलवी मसलक वाले राफजी हैं, अहले सुन्नत व जमात नहीं है। मैं वो खुद कहा कि तैयब ने खुद कहा, ये दावा किया। किताब का नाम क्या है? कौन किताब का नाम क्या है? मैंने आपको तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत सफ़ा नंबर 594 निकालो। मुसन्निफ इलियास घुमन के पीर अब्दुल हफीज मक्की साहब। अच्छा, सफ़ा नंबर? सफ़ा नंबर 594। जिल्द इसका ही नहीं, एक ही किताब है तो नहीं है। लाहौल वला कुव्वता, जिल्द है नहीं, एक ही किताब है। तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत में सफ़ा नंबर 140 में भी देखोगे और 594 में भी देखिएगा, तो ये अहले सुन्नत व जमात का और कहले आसमानी। मैं फौरन ही स्कैन डाल दे रहा हूँ, अगर नहीं डालूंगा जाल हक में ना, जाल हक में नहीं पढ़ रहा हूँ। आपके घर का अकायद बातेला की मेरे छान बहुत है, आपके घर की किताब का बहुत मुताला किया हूँ, इतनी किताबें हैं। बोल रहे हो जी? फतावा रज़वी से बोल रहे हो? फतावा रज़विया में तो ये सब मौजूद ही नहीं है। और हम कैसे तुम्हारी गंध तो अशरफ अली मेन टारगेट का वहां पर लिखा हुआ है। ये मैं कैसे तुम्हारी बात पर एतमाद करूं जब तुम नहीं भेजोगे? इलियास घुमन कब पैदा हुआ? आला हजरत के जमाना में था ये चापलूसी करने वाला। नहीं, तुम अभी घुसा दोगे ना उसके अंदर? कहाँ घुसा देंगे? तो तुम्हारे बात पर एतमाद कैसे करूं मैं? तुम लोग तो हवाला नहीं भेजोगे? मैं हवाला भेज दे रहा हूँ ना फौरन। अगर कहिएगा दोबारा फोन करके मुझे कि हवाला क्यों नहीं भेजे, मैं अभी फौरन आपको भेज दे रहा हूँ। मैं नहीं, वो भेज दोगे फोन काटने के बाद? तो मैं फोन काटने के बाद ही भेजूंगे ना मैं। नहीं, हाँ तो फिर किस तरह जवाब दूं तुम्हारे को मैं, जब किताब पर्सनल में नहीं आवे तो? तो आप अपने किताबों का खुद मुताला नहीं करते, गैरों की तरफ उंगुश्त नुमाई करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जब जवाब नहीं आता है, तुम लोग सवाल लेके आते हो, जवाब तुम्हारे घर से किताब क्या जवाब देता हूँ, तुम लोग बहानाबाजी करने लगते हो कि स्कैन भेजो, फौरन भेजो। शर्म आनी चाहिए। तुमने जवाब दिया ना? कहाँ मैं जवाब दे दिया और साबित भी कर दिया। अहले सुन्नत व जमात मानते हैं आपका अकाबिरी। तुमने जवाब ये दिया कि हमारे अकाबिर, हमारे उलमा ने तुमको अहले सुन्नत कहा है, बराबर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब तो मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारा हकीमुल उम्मत तुमको बेईमान कह रहा है तो तुम्हारा कुफ्र हमारे अकाबिर के अहले माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। झूठ बोल रहे हो ना, बेईमान कहाँ कह रहा है? क्या ईमान की दौलत बर्बाद के लिए क्या है? जो में लफ्ज जो है ना, उसमें बाज लोग आएंगे, समझे। हर अहले सुन्नत व जमात नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो रवाफिज की सोहबत में, जो लोग रवाफिज की सोहबत में रहकर, जो में कुछ लोग हैं, कुछ सुन्नी भटक जाते हैं। कौन जलालुद्दीन है, नूर हसन है, जैसे तुम भटके हुए हो, जैसे तुम भटके हुए हो। पहले तुम्हारे बाप दादा सुन्नी था ना? अच्छा, अली असगर साहब, पहले तुम वल्लाह बताओ, तुम्हारे बाप दादा सुन्नी था या नहीं?
हाँ बता रहा हूँ, जवाब दूं? जवाब दीजिए। तुम्हारे दादा सुन्नी था या नहीं? तुमने कहा यहाँ सुन्नी से मुराद तुम लोग दो भटके हुए हो, यानी तुम्हारी किताब में तुम्हारा अहमद यार खान ने जो सुन्नी लिखा है इससे मुराद देवबंदी है। उससे मुराद वो नहीं, वो रावजी और सुन्नी लोग मरते हैं। सुन्नी लोग हम लोग थोड़े कहते, तुम लोग तो काफिर हो नहीं यार, तुम दायरे इस्लाम से खारिज हो, तुम्हारे कुफ्र आया है। तो फिर यहाँ जो सुन्नी का है तुमने कहा है ना? तुम्हारे बाप दादा सुन्नी जो थे वो लोग कुछ सोहबत में रह करके भटक गए जिसे, और तुम जैसा तुम्हारे जैसा औलाद पैदा करके लोगों को गुमराह करने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, मतलब इस तरह से ना, मेरे बाप दादा देवबंदी थे, तो यहाँ देवबंदी नहीं था वो लोग, दादा लोग। तुम्हारे बाप से तहकीक करो ना, वल्लाह मैं कहता हूँ सुन्नी ही रहेंगे। तो तो हमारे वालिद मोहतरम जो हैं ये सुन्नी थे, हमारे दादा भी सुन्नी थे, है ना? ये देवबंदी। तुमको मालूम नहीं है तुम्हारे वालिद साहब के बारे में? मैं बोल रहा हूँ, मैं गवाही दे रहा हूँ, सुन्नी देवबंदी थे वो लोग। देवबंदी नहीं था तुम्हारा दादा के वक्त तो खत्म ही हो गया होगा, देवबंदी है ही नहीं था। चलो ठीक है, तो तुम इल्जाम दे हमारे वालिद मुतालिक वो सुन्नी नहीं थे, तुम्हारी बात अगर मोतबर है, तो मैं अगर कहूँगा तुम्हारा बाप दादा काफिर थे, अबू जहल अबू लहब, तो मेरी बात तुम्हारे लिए मोतबर है? हो सकता है हमारे परदादा हो सकता है काफिर हो, मुझे क्या मालूम है उतना। तो गुमान पर किसी पर पता लगा सकते हैं कुफर का? गुमान पर मैं 100% ऐसे कह सकता हूँ कि आज से देवबंद जब कायम नहीं हुआ था तब से पहले सब सुन्नी थे, बाद में सब देवबंदी बाद में बने, अपने ईमान को गारत किए। तुम बात कर रहे हो उससे पहले की बात। तुम्हारा दादा परदादा लकड़ दादा सब सुन्नी थे पहले, समझे? तुम लोग बाद में गुमराह हुए हो और दायरे इस्लाम से खारिज। मैं दादा को भी देखा हूँ, वालिद साहब भी। बहरहाल मौजू से भटको नहीं, आपको मैं आपके घर से तुम खुद बात किए, मैं मुफ्ती तैयब साहब का दंदाने शिकन जवाब दिया हूं मैं, और आपको स्कैन में भेजूंगा, जरूर भेजूंगा मैं। दंदाने शिकन? जी उनके मुंह खट्टे कर दिया, दांत खट्टे कर दिए। तो यहाँ पे तुमने कहा कि यहाँ सुन्नी से मुराद तुम्हारे देवबंदी बाप दादे, बराबर? तो पता ही चला यहाँ सुन्नी लफ्ज देवबंदी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारे लिए है तो फिर तुम बेईमान हो और मेरे मामले के गुस्ताख हो। और माज़अल्लाह, इधर उधर की बातें ना करें, मैं लंतरानी बात करने वाले नहीं हूँ। आप मेरी तरफ जानते हैं, मैं आलिमाना अंदाज और इल्मी तौर पर बात करता हूँ और हवाले से बात करता हूँ, समझे? तुम मुफ्ती हो ना? सुनो पहले, आओ मैं हवाला दूं। अरे तुम मुफ्ती हो ना? आपके लिए मैं मुहद्दिस भी हूँ, हदीस भी पढ़ाऊंगा आपको और फतवा भी दूंगा आपको, और आपके लिए आपके देवबंद वाले तो परेशान जी है। अरे सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मुफ्ती हो तो किस इदारे से तुम इतना इफ्ता किया, बताओ ना। सुनो, एग्जाम ना लो, इम्तिहान ना लो, समझे? यही जो फता हुआ रसीदिया तुम मेरे पास भेजा था, तुम कहते हो देवबंद के मुनाजिर हैं, और उसके सनद के तौर पर कौन एक छटे हुए मौलवी और पता नहीं किसकी वॉइस को सुना रहे थे मुझे। लेकिन शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार, अपने बदअकीदगी से तोबा नहीं करते हो, अहले सुन्नत व जमात पे भौंकने की लान तान करने की कोशिश करते हो, शर्म आती है ना? तुम मैं तुमको क्या पूछ रहा हूँ, तुम बोल रहे हो तुम इल्मी गुफ्तगू करते हो और तुम मुफ्ती हो, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ हाफिज कुरान होकर के तुम मुनाजिर कहलाते हो ना यार। मुनाजिर का मेरे पास ये वीडियो भेजा था, और कौन मौलवी का कहा हुआ, कौन मौलवी तुमको मुनाजिर कहा? कौन मौलवी कहा है? हाँ, मुदस्सिर रजा, तुम्हारा मुफ्ती मुदस्सिर रजा। झूठ बोलते हो यार, लानतुल्लाह काज़िबीन। हजरत मुफ्ती मुदस्सिर रजा साहब की वॉइस को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, झूठ क्यों बोलते हो यार? देवबंदी धर्म तो झूठ में ही टिका हुआ है ना। सुनो ठीक है, अब मैं जवाब दे ठीक है, कह रहे हो तौबा करने के अलावा। अरे जब जवाब दे रहा हूँ जी बताओ, जवाब दो। कौन कहा है? सुनो यार, कौन तुमको मुनाजिर कहता है, बताओ तो। हाँ जवाब दो। तुम्हारा मुफ्ती मुदस्सिर रजा ने हमें फोन किया, फोन करके कहा अली असगर तुमसे मैं आमने सामने मुनाजरा करूंगा। कौन कह रहा है? वो चैनल में ये देवबंदी खजर में ये वॉइस पड़ी हुई है, वह कहा मैं तुमसे मुनाजरा आमने सामने करूंगा। ठीक है, तो मैंने उससे सवाल किया था कि तुम्हारे मुंबई गांव से तुम्हारे मस्जिद की कमेटी वालों ने मशवरा करके मुझे फोन किया एक आदमी के जरिए से, जिसकी गवाही बहुत सारे हैं। उसने फोन किया था कि तुम मुफ्ती मोतीउर रहमान से मुनाजरा करोगे आमने सामने। मैंने बोला मैं चैलेंज कबूल कर लिया, लेकिन मेरी शर्त है जो तुम्हारा मुनाजिर होगा पहले मुझे फोन में बात कराओ उससे।
कि मेरे नजदीक बात करने के लायक है या नहीं। तो मैंने मुफ्ती मुदस्सिर को कहा था कि क्या तुम्हारा मुफ्ती रहमान मर गया, शमशान घाट में चला गया? जब उसने चैलेंज दिया है, मैंने कबूल कर लिया है, अब उससे मुनाजरा तय है, फिर तुम क्यों बीच में आ रहे हो? नूर हसन आया, वो भी कहा कि तुम सामने सामने मुनाजरा करूंगा। पूछ लो, दोनों से पूछ लो तुम। अरे इधर उधर की बात ना करें आप, कहानी मत सुनाए, समझे? तुम मुझे पर्सनल में बताओ, अल्लाह मुझे जो भेजे हो, कौन छटे हुए मौलवी, एक नंबर के बदमाश मौलवी जिसको सही तौर पर उर्दू गुफ्तगू करने का अंदाज नहीं है, वो बोल रहा है तुमको आदि असगर हमारे नुमाइंदे हैं देवबंद के और मुनाजिर हैं कह करके, और सनद के तौर पर तूने पेश किया। वो कौन मौलवी है, सिर्फ नाम बताओ, वहीं पहुंच के उससे जूते लगाऊंगा, समझे? अच्छा, तो कौन है वो मौलवी, बताओ तो, सिर्फ नाम बताओ तो। मुफ्ती मुदस्सिर रजा। अरे यार, मुफ्ती मुदस्सिर रजा का वाइस नहीं है वो कौन मुफ्ती है तुम्हारा, कौन मुनाजिर है जो आपको मुनाजिर करके दलील के तौर पर, सनद के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं उसको पहुंच के उसको सबक पढ़ाऊं। जी जी, तुम्हारे घर से मैं मुनाजिर साबित हूँ, तो हमारे घर के दलील तुम्हारे लाहौल। तुमने भेजा मुझे एक पर्सनल में वाइस अपनी वीडियो भेजा, मैं सुना भी, बहुत हंसी आई मुझे। अब मैं कहा कि मैं साल भर से इनसे बात नहीं हुई मुझे, अली असगर साहब से, और कह रहे हो। हाँ। तो और ये अचानक वीडियो भेजा है मेरे पास। वो हमारा मुनाजिर है, और इससे मुनाजिर कौन है तुम्हारा मुदस्सिर रजा ने। कौन मुनाजिर है? कौन मुनाजिर है वो? मुफ्ती मुजाहिद। मुफ्ती मुजाहिद पाकिस्तान के हैं? होंगे, पता नहीं मुझे, बताइए ना। उनका ऐलान है। नहीं, उनका ऐलान है। कहाँ रहते हैं वो? कहाँ रहते हैं? तुम्हारा मुफ्ती मुदस्सिर से पूछो कहाँ के हैं वो। नहीं, मुझे बताइए ना, डरिए नहीं, मैं नहीं पहुंच के जूता नहीं मारूंगा, सिर्फ मैं उससे पूछूंगा। मेरी बात सुना, साहिर रजा ने उससे मुनाजरा किया है मुफ्ती मुजाहिद से, ठीक है? और तुम्हारा ये मुफ्ती डॉक्टर, ये क्या उस नाम है, डॉक्टर नईमी, मारूफ मिसबाही नईमी ने मुनाजरा किया है बाकायदा व्हाट्सएप के अंदर, हिफ्जुल ईमान का मुनाजरा किया है। पता नहीं वो कहाँ के हैं, क्यों डर रहे हो? मुझे सिर्फ बताएं ना आप, मुझे सिर्फ बताएं, आप देवबंद के मुनाजिर हैं मुफ्ती मुजाहिद, वो कहाँ के हैं? डरिए नहीं, बता दे, सिर्फ जगह बताने में क्या है यार। जैसे तुम जानते हो नहीं जानते, बताओ। नहीं जानता हूँ इसको, मैं सुना भी नहीं। तुमने बात कही, एक पर्सनल तुमने जवाब भेजा है, बोले छठे हुए हैं। मुजाहिद बहुत नाम के हो सकते हैं, आपके मुनाजिर कहलाते हैं, तो आप सनद दिया है, तो वो सनद देने वाले को एरिया जानूंगा कहाँ का है और कौन छठा हुआ मौलवी है, पहले पहचानूंगा तब ना उससे गुफ्तगू करूंगा, उसके धुलाई करूंगा। जवाब नहीं लोगे? नहीं, उसको बताएं पहले। तो जवाब देना, मौजू से इधर उधर भटक के कहां से कहां की बात कहां चुप कर दिया। तुम लोग सहाबे कराम पर फतवा लगाते हो, इमाम बुखारी पर फतवा लगाते हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर फतवा लगाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार, अपने अकाबिरीन के किताब पढ़ कर तौबा करना चाहिए। वल्लाह बताता हूँ। भाग मत सुन, मेरी बात सुन। तुमने बोला कि छठे हुए इंसान है, तुम्हारा जमशेद रजा ने फिर इधर उधर बात कर रहा है वो, अपने लंतरानी मत हाको, अपने कुफरिया तौबा की बात, कुफरिया इबारतों की बात करो यार। तुम्हारे घर से मैं अल्हम्दुलिल्लाह में साबित कर दिया अहले सुन्नत व जमात हम लोगों को, और तुम्हारे अकाबिरीन मान करके लिख करके मरघट में मिल भी गए, और जो मुखालिफत की है उसको बेदीनी और गुमराही और काफिर और बददीनी साबित उनके कर दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इमाम बुखारी पर भी तुम लोग शिर्क का फतवा लगाते हो, तो बुखारी पढ़ना छोड़ दो यार। मैं पढ़ूं? खालिद महमूद देवबंदी लिखते हैं, सही बुखारी की इस रिवायत पर एतमाद कीजिए। इमाम बुखारी ने यह बाब फसलु सौम में रिवायत की है, उसको जाहिरी मजमून क्या है, शिर्क है कह करके लिखा है। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। शिर्क का फतवा मुहद्दिसीन पर, शिर्क का फतवा नबियों पर, और शिर्क का फतवा सहाबा पर, तमाम शिर्क मुश्रिक कहने वाले कबीरा गुनाह
के मुर्तकब है लेकिन सुन्नत जमात से खारिज नहीं होगा कह करके फटा हुआ रशीदिया में और फटा हुआ रशीदिया में बस ये शिर्क जो उनसे सरजद हुई, किससे? हजरत आदम और हव्वा के बारे में लिखते हैं, बस ये शिर्क जो उनसे सरजद हुआ है ये शिर्क फी तस्विया है। फटा हुआ रशीदिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 192 माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तालिफात रशीदिया सफा नंबर 62 में। और खालिद महमूद तो और एक डेग आगे आकर के कहा कि इमाम बुखारी उससे भी बढ़ करके अपने आप को गुमान कर रहा था। इमाम बुखारी ने ये फसलुस सौम में रिवायत की है, उसका जाहिरी मजमून शिर्क है। मुताले बरूजियत जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 108 में लिखा है। अब जाहिर है कि सही बुखारी की इस हदीस में सरीह शिर्क की तालीम है। मुताले बरूजियत जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 181। सामीन किराम, अब जो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर शिर्क का फतवा लगा सकते हैं, जिनको बुखारी शरीफ में भी शिर्क की तालीम नजर आती है, वो हम सुन्नियों पर शिर्क का फतवा लगा भी दे तो क्या बड़ी बात है, कौन सी पहाड़ धस जाएगा। लोग तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के धर्म को छोड़ो, इस्माइल देहलवी के धर्म को छोड़ो और मुसलमान बनो, तौबा करोगे? हाँ सुनो, जवाब लो, ठीक है, जवाब दो इसका। खामोश रहो, एकदम खामोश रहो। सामीन देखें, इसको मैंने कहा तू हवाला भेज, स्किन नहीं भेजता है अपनी किताब जाल। स्किन नहीं, स्कैन होता है यार, स्कैन बोलो, क्यों सारी गलती कर रहे हो लफ्ज में? इन्होंने सुना को बोलो, स्कैन बोलो, इंग्लिश वर्ड बोल रहे हो तो स्कैन बोलो। स्किन का स्किन माने चमड़ा होता है, स्किन माने आपके खांसी हो रही है। मैं खामोश था तुम्हारे बारे में। अरे गलती बोलोगे तो सुधार देंगे, कुछ सीखो यार, इल्म वाले लोग से कुछ सीखो। तुम्हारे बारे में हाँ बोले जवाब दें। सामीन देखें, इससे मैंने कहा कि तुम हवाला मेरे पर्सनल भेजो, तुम भी पढ़ोगे, मैं देखूंगा तुम कहां से पढ़ रहे हो। अब मेरा दावा है कि ये जो पढ़ता है, जब भी पढ़ता है जाल हक से पढ़ता है, हमारी किताब से नहीं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जाल हक का सफा नंबर बताओ। ये मुताले बरूजियत का हवाला लिखा है, महमूद साहब मर गए, बाद में जन्म कर्म हुआ इसका। जाल हक क्यों झूठ बोल रहे हो यार? कौन सफा से हवाला पेश करो। सिर्फ झूठ बोलना है तो झूठ को बदलाना। जाल हक से पढ़ रहा हूं का करके ये इन्होंने दावा किया है, तो सफा नंबर सिर्फ बताते जाएं। खामोश तेरा सफा नंबर बताओ यार, झूठ मत बोलो। अरे खामोश रहेगा नहीं, झूठ क्यों बोलते हो? झूठ तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो झूठ। मैं इसका हवाला दूंगा तुमको, हवालात में इतना दबा दूंगा कसम से। तुम लोग खामोश रहो यार, दीन का मजाक बनाकर रख दिया है देवबंदी धर्म। अरे जवाब तो सुन। हाँ सामीन, इसने कहा कि तुम बुखारी, इमाम बुखारी को कहते हो उसने शिर्क किया है, ये किया, फला किया है, आदम के मुतालिक कहा है बराबर, लेकिन वो हवाला नहीं दिया। अब मैं हवाला नहीं दिया। मुताले बरूजियत जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 80 और फटा हुआ रशीदिया में रशीद अहमद गंगू के सफा नंबर 192 जिल्द नंबर 2 पढ़ो। ईमान और कुफ्र के मसाइल में तालिफात रशीदिया सफा नंबर 62 में लिखा है। इतना कुतुबुल अख्ताब कहते हो रशीद गंगू को, शर्म आनी चाहिए। खामोश है, खामोश। तुम झूठ पर झूठ बोलते हो ना यार। चल जवाब दे। दो कुत्ते भौंक रहे हैं, दो गधे और मंदिर आ गए, पता नहीं। चल जवाब दो, इधर उधर की बातें ना करें। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, इनकी किताब है, एक किताब में सफा नंबर 23 पर लिख रहा है, मोहम्मद ने नाम सिर्फ बताओ, किताब के नाम बता लें। हाँ हजरत आपके पर्सनल भेज दिया, देखें किताब का नाम बताएं यार। हाँ, दीवानी मोहम्मदी। हाँ, अगर कहोगे गैर मोतबर है, मैं साबित करूँ तुम्हारे घर। नहीं, मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ, तुम तो इनकार करते हो ना, तुम इनकार करते हो। और जवाब देने की बारी आती है, जवाब देने की बारी आई तो इकरार करते हो ना, इनकार कर रहे हो तुम। ये जवाब दो इसका कि इसके बारे में ये रशीद अहमद गंगोही को काफिर समझते हो या मुसलमान? हाँ जवाब दो। हाँ, अरे यार भौको नहीं बीच में, क्यों तैयब खुद भौंक रहा है कुत्ते की तरह। बोलो। भौक नहीं लिखा हुआ सफा नंबर 23 पर दीवान मोहम्मदी के अंदर, इसने ये मोतबर माना है इसको। पहले इबारत पढ़ो। अरे खामोश, गर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया, गर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया,
پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے جگہ باز نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی محمد علیہ السلام نے خود کو خدا مان لیا تو محمد علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم واستغفر اللہ رب العالمین. آپ تہمت بازی کرو. اچھا بول لے، جواب دیتا ہوں میں. حوالہ میں دیوان محمدی کا حوالہ تم نے دیا، حوالہ دوں بھیجوں؟ نہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں دیوان محمدی دیکھ لیتا ہوں. اور ایک حوالہ دے رہا ہوں، رکو. اچھا اس کا جواب دو نا. یہ رشید احمد گنگوہی کافر ہوا یا مسلمان رہا؟ آپ جواب نہیں دیے. خالد محمود کافر رہا. حوالہ نہیں دیا تم. میں حوالہ دے رہا ہوں نا، ابھی فوراً بھیج رہا ہوں. بھیج دوں میں، بھیجوں؟ بھیج رہا ہوں رکھو. اب کیا بھیج دے رہا ہوں آپ کو. ہاں بھیجو بھیجو. اس کے بعد پھر بات کرتا ہوں میں. بھاگنا مت. کیا بھاگنا نہیں؟ میں پھر بات کر رہا ہوں آپ سے. بھاگے گا. میں نکال کر کے ابھی فوٹو کھینچوں گا اس میں. تو پڑھ رہا ہے، جب کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہے میں ترنت فوراً ہی بھیج دے رہا ہوں. واللہ بتا رہا ہوں، فوراً 10 منٹ میں بھیج دے رہا ہوں. تیرا کتاب نکالا تھا نا، تو ہی پڑھ رہا ہوگا نا. میرے پاس کتاب بھی موجود ہے. میں فوٹو کھینچ کر کے آپ کو نشاندہی کر کے آپ کو بھیج رہا ہوں، نشان لگا کر کے. بھیج دیا، تیرے پرسنل بھیجا ہے. دیکھ میں ٹوکری کا ٹوکری تمہاری کتاب کو فون میں نہیں رکھتا ہوں. نہیں، وہ اس میں وائرس ہو جاتے ہیں. گستاخی اور بے ادبی کثیر بھارے پڑے ہوئے ہیں. تم کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے. تم رشید احمد گنگوہی کو کتب الاقطاب کہتے ہو اور خالد محمود کو کہتے ہوئے تمہاری امام مانتے ہو. یہ تو سب کافر و مشرک ہیں یار. اس کی محمدی کو معتبر مانا ہے جلال الدین. سن لو، میں جواب دوں گا اس کا. میں اسکین، آپ مطالبہ کر رہے ہو تو میں اسکین بھیج رہا ہوں. میں اسکین بھیج رہا ہوں آپ کو علی اصغر صاحب. آپ کے جو پرسنل ویڈیو آیا ہے نا، اسی میں بھیج دے رہا ہوں ابھی، ہے نا. تمہارے پر پڑی ہے، بھیج رہے ہو نا. پہلے نہیں بھیج رہے تھے، فون کیا چیز آپ بول رہے ہو؟ مطالبہ کر رہا ہوں، اسکین بھیج. بیزار کر دیا تم. میں بات پھر بھیجنے کے بعد بول رہے ہو. میں اس میں تم کو جواب دوں گا. ابھی میں جواب دوں. اب تک کیوں بھیج رہے تھے تم؟ میں تو ایسے جواب دوں گا تمہاری چھٹی کے دودھ یاد آ جائیں گے. واللہ میں جواب دوں گا. علی اصغر تیرے سامنے میں تمہارے علی اصغر سمجھے، تم گیدڑ کی طرح بھاگتے ہو، سمجھے. میرے سامنے رضا کا شعر سامنے رہتا ہے نا تو تم گیدڑ ہو جاتے ہو. قسم سے بتا رہے ہیں. میں فون کر رہا ہوں تم کو. میں حوالہ بھیج دے رہا ہوں، رکھ. میں نے بھیجا، پڑھ. میں حوالہ بھیج رہا ہوں، رکھ.